Good morning, class. Continuing with the lesson that is Dream Children by Charles Lamb. Till now, we have learned that the author is telling about the story to two children named Alice and John. And we also came to know that Alice was the name of grandmother and John was the name of brother. That is Charles Lamb, brother and grandmother. Now, children, in this story, Dream Children, we came to know that he was very attached to grandmother and also with the brother. So, moving ahead with the story, the writer is saying about the grandmother. That is, my grandmother was a very great lady. She was a very great woman. She was very religious and people used to love grandmother a lot. Be it senior, be it elder people or small children, okay, or be it rich or poor. Everyone used to love grandmother a lot. Okay, children. And as we move ahead, she says that she was a esteemed dancer. She was a very well-known dancer, and she used to keep the mansion in which she was staying. She was living in a very proper manner. So all these things made grandmother a very great lady. Children, we also see that this time the grandmother was suffering from a very dangerous disease, that is cancer. Grandmother was suffering from cancer and because of which she died. Clear? When grandmother died, this left a very deep impact on the child. That is, the child was not able to live or stay properly. The child was, when Lamb was small, he was not able to come out of this thing because he was very close to grandmother and he used to love grandmother a lot. Okay, children? Moving ahead with this lesson, he is telling more about grandmother, that when they used to go to stay with grandmother, she used to tell them lots of stories. Okay, and some of the stories were also horrifying stories in which she used to mention about two children that used to play in the house of grandmother. Okay, they were two children. She used to say that when I used to sleep, that time there are two children. They are playing in my house. They come and play in my house, and that story is also mentioned near the chimney. Okay, it was a wooden chimney and the story was also mentioned there. So it can be the imagination of the grandmother, and the poet says, but that two children never tried to hurt anyone. This was the thing which was told by the grandmother to Charles Lamb when he was small. Okay, and this thing Charles Lamb also mentioned in the beginning of the lesson, that there were two children which were killed by their uncle and they were left in the forest open, means they were not covered, they were left in the forest. Clear? So there is connection between the two things. Charles Lamb was not able to forget this, and based on this same thing he has mentioned this story. Okay, children? So what happened? Once the owner of that mansion, he came and he has turned the chimney. That is, he has turned the chimney from the wooden to the cemented one. He has put tiles and he has closed and dumped the chimney. Okay, children? So like this way, the chimney which was made of wooden, now that chimney is being covered and it is being properly hammered and it is being made of, children, that chimney is being made of now, this thing, what we say, cement. Okay, it was a cemented chimney now and it was tiles. So that story which was encased there in words has been removed from there, so that the illusion of the grandmother, the thinking of the grandmother can change. Okay, children, the same thing I am going to explain you in Hindi. In this, the poet is saying that, the writer is saying that this Charles Lamb, वो बोलते हैं ये स्टोरी के बारे में, ड्रीम चिल्ड्रन, जिसमें पहले वो अपनी ग्रैंडमदर के बारे में बताते हैं, फिर अपने ब्रदर के बारे में बताते हैं, और जो बच्चे वो अपने माँ की जिन्हें कहानी सुनाते हैं उसका नाम रहता है एलिस और लड़के का नाम रहता है जॉन. दोनों एलिस और जॉन दोनों ही इमेजिनेशन कैरेक्टर हैं इस लेसन में. ठीक है, और वो दोनों ग्रैंडमदर और उसके ब्रदर के ऊपर बेस है.
ठीक है। अब जैसे जैसे हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं तो लैम्ब बोलता है कि बहुत साल पहले जहाँ पे मेरी दादी का घर है नॉरफॉक्स में, वहाँ के जंगलों में 2 बच्चों को मार के छोड़ दिया गया था उनके अंकल के द्वारा। उनके जो मामा रहते हैं या चाचा रहते हैं उनके द्वारा उनको मार के छोड़ दिया रहता है, चाचा के द्वारा उनको मार के छोड़ दिया रहता है। ठीक है। और फिर उनकी जो बॉडी रहती है वो किसी भी चीज़ से कवर नहीं रहती है, तो उस बॉडी को कवर करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, वो लोग तो कुछ नहीं करते मगर वहाँ पर एक दूसरा इंसान रहता है जिसका नाम है रॉबिन। वो रॉबिन इन बच्चों की जो बॉडीज रहता है उसको लीव्स से कवर कर देता है। ठीक है। फिर कहानी में आगे देखते हैं कि वो अपनी ग्रैंड मदर से बहुत ज़्यादा क्लोज था। उसकी ग्रैंड मदर उसको बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी कहानी सुनाया करती थी, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा क्लोज था अपनी ग्रैंड मदर के। और वो बहुत बड़ाई करता है अपनी ग्रैंड मदर की। जो मेरी ग्रैंड मदर है वो बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छी लेडी है। उन्होंने हम बच्चों को बहुत प्यार किया है और हमारे साथ साथ जो वहाँ के जो भी लोग थे, चाहे वो बड़े हों या बुजुर्ग हों या बच्चे हों या अमीर हों या रिच हों, वो सब लोग मेरी दादी को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उनके नेचर की वजह से, उनके स्वभाव की वजह से वो लोग दादी को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा लाइक करते थे, बहुत अप्रिशिएट करते थे। और इससे क्या होता था बच्चों, जो ग्रैंड मदर है वो भी दूसरों को उतना ही सम्मान, प्यार और बाकी चीज़ें देती थी। इस तरह से हम कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लेखक बोलते हैं कि जो मेरी ग्रैंड मदर थी वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस लेडी थी। वो जिस घर में रहती थी वो घर रेंट का था, मगर उस घर को इतने सुंदर से सजा के संवार के रखती थी कि कोई भी ये चीज़ पता नहीं कर सकता था कि ये घर उनका है या रेंट का है। वो बहुत ही सुंदर तरीके से अपने घर को सजा के संवार के रखा करती थी। और हम आगे देखेंगे कि वो उन्होंने गार्डन बाकी चीज़ों को भी बहुत अच्छे से मेंशन किया है। जब बच्चे जाते थे, स्पेशली चार्ल्स को वो बोला करती थी कि ये जो घर है मेरे सोने के बाद इस घर में 2 छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं। उन्हें हम देख नहीं सकते मगर मैं उन्हें महसूस करती हूँ। यहाँ पे 2 छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं। ठीक है। और वो आगे यह बोलती हैं कि जब मैं सो जाती हूँ तो वो बच्चे खेलते हैं, वो लोग यहाँ पे बहुत मस्ती करते हैं मगर वो लोग किसी को हर्ट नहीं करते, वो लोग किसी को परेशान नहीं करते, वो लोग किसी को दुखी नहीं करते। वो लोग सिर्फ यहाँ पे खेलते हैं और फिर वो लोग गायब हो जाते हैं। ठीक है। और बहुत बड़ा सा मेंशन रहता है और उस पूरे बड़े से मेंशन में जो उसकी ग्रैंड मदर है वो अकेले रहती थी, अकेले सोया करती थी। एक चिमनी थी वहाँ पे जिसका मेंशन किया है लेखक ने यहाँ पे। वो चिमनी जो थी पहले वो वुड की बनी थी, लकड़ी की बनी थी, जिस तरह पुराने घरों में हुआ करती थी वो चिमनी वुड की बनी थी। मगर फिर और उस चिमनी में उस चिमनी में एक वुडन पीस था जिसमें ये स्टोरी लिखी गई थी। ये 2 बच्चों के बारे में मेंशन किया गया था कि ये 2 बच्चे जिन्हें उनके अंकल ने मार के जंगल में यूं ही छोड़ दिया था। ठीक है। फिर जिन्हें रॉबिन ने आके उनके ऊपर लीव्स डाल के उन्हें कवर किया था। ठीक है। तो ये कहानी मेंशन थी उस चिमनी में। फिर कुछ समय बाद जब वहाँ पे ओनर आए और उस ओनर ने उस चिमनी को सीमेंटेड कर दिया था और उसी में टाइल्स लगा दी थी। ठीक है। तो इस तरह से वो उस घर को रिनोवेट करते हैं, थोड़ा सा उसका एक पार्ट रिनोवेट करते हैं। ये चीज़ उसकी दादी को पसंद नहीं आती है क्योंकि दादी उसकी जिस तरह से घर पुराना घर था उस तरह से ही उस घर को रहना और देखना पसंद करती थी। ठीक है। अब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि जो बच्चे रहते हैं, जो वो 2 बच्चे आते हैं, वो खेलते हैं, वो किसी को परेशान नहीं करते और वो चले जाते हैं। ठीक है। तो इन 2 बच्चों का और जो जंगल में जो 2 बच्चे मिले थे उनके बीच में कुछ कनेक्शन है, ऐसा चार्ल्स मानते हैं। उनके बीच में कोई ना कोई जरूर कनेक्शन होगा, ऐसा चार्ल्स मानते हैं। फिर उनकी जो दादी थी उनका बहुत दुखद निधन हुआ था। इस तरीके से हुआ था कि उन्हें कैंसर था और उन्होंने बहुत समय तक कुछ ना कुछ दवाइयाँ ली मगर उसका कोई इलाज नहीं हुआ और एक दिन वो सबको छोड़ के इस दुनिया से चली गई। सबको तो बहुत ज़्यादा दुख लगा था और स्पेशली चार्ल्स बहुत ज़्यादा दुखी थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अटैच थे अपनी ग्रैंड मदर से। इसके कारण से वो बहुत ज़्यादा दुखी थे इस बात को लेके। ठीक है बच्चों। फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि चार्ल्स अपनी ग्रैंड मदर की फ्यूनरल के बारे में बताते हैं। चार्ल्स बोलते हैं कि जो मेरी दादी का जब फ्यूनरल हुआ था तो उसमें बहुत सारे लोग आए थे, गरीब भी आए थे, बड़े भी आए थे, छोटे भी आए थे, बुजुर्ग भी आए थे एंड इसमें रिच भी थे, पुअर भी थे, हर टाइप के लोग आए थे क्योंकि मेरी ग्रैंड मदर ने सबसे बहुत ही अच्छा ह्यूमैनिटी का रिश्ता रखा था क्योंकि वो बहुत अच्छी
इंसान थी और उन्होंने सबके साथ एक ह्यूमैनिटी, एक इंसानियत के तौर पे रिश्ता रखा था और वो सबकी बहुत हेल्प करती थी। ओके चिल्ड्रन, तो चार्ल्स इसमें बोलते हैं, चार्ल्स सेज इन दिस लेसन दैट when my grandmother died, she was suffering from cancer, and when she died, that time lots and lots of people came to see to attend the funeral of my grandmother. फ्यूनरल मतलब जब हम उनका अंतिम संस्कार करने के लिए उनको ले जाते हैं, तो बहुत सारे लोग आए थे। They were rich, they were poor, they were old, they were younger. This shows that my grandmother was a very good lady by heart, and she was giving equal treatment to everyone. That is why there were so many people, those who have attended Mrs. Lamb's funeral. She was not Mrs. Lamb, she was Field. Okay, the grandmother was being called as Field in this lesson, Alice Field. Clear? तो जो उनकी जो छोटी बेटी रहती है एलिस, वो अपने हाथ ऊपर करके अपने फादर से बोलती है कि जो ग्रैंड मदर थी, मेरी ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड जो थी, शी मस्ट हैव बीन वेरी ग्रेट लेडी, वेरी ग्रेट लेडी। तो उसके फादर बोलते हैं यस, शी वाज अ वेरी ग्रेट लेडी, though there was lot of sufferings in my grandmother's life also, but then also she was very great. She used to treat everyone equally, and she used to treat everyone with humanity, treat everyone with humanity and with other things. Okay children, that's all for in this video. We'll continue in the next class. Okay class, please go through it and do copy the notes properly. Thank you.